Good morning, students. Today, in science subject, chapters 11, chapters name light, shadow, and reflection. The topic's name is eclipse. Eclipse means grahan. What? Grahan. Eclipse. Eclipse means grahan. Topic's name eclipse. Eclipse means grahan. When the moon or the earth coming between the sun and when the moon or the earth travels around the sun, comes between the sun and the earth or moon, then happens eclipse. What? Eclipse. जब पृथ्वी एवं चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करती हुई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा अथवा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा अथवा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब जो घटना घटित होती है उसे ग्रहण कहते हैं। नोट करेंगे, इसको कर सकते हो, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। When the earth and the moon come between the sun and the earth, or when the moon or the earth and the moon or the earth then becomes eclipse. जब पृथ्वी एवं चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करती हुई come between the sun and the moon or the earth, then becomes eclipse. जब पृथ्वी एवं चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करती हुई between the sun and the moon, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में, और अथवा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में मून आ जाती है, अथवा सूर्य एंड द मून के बीच में अर्थ आ जाती है, देन बिकम्स एक्लिप्स, तब ग्रहण होती है। तब जो घटना घटित होती है उसे एक्लिप्स अर्थात ग्रहण कहते हैं। अंडरस्टैंड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड lunar eclipse. Now at first topic, solar eclipse. First, solar eclipse. Solar eclipse means सौर ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। When the moon comes between sun and the earth, then the
shadow of moon falls on the earth and the light of sun is obstructed by the moon, this phenomenon is called solar eclipse. नोट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड पहले कर ले। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तथा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और बीच में चंद्रमा आने के कारण सूर्य के प्रकाश को वो ऑब्सक्योर कर लेती है, अवरोधित कर लेती है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उसे छायादार पोर्शन वाले पृथ्वी के भाग से जो देखते हैं वह ग्रहण को, उस घटना को सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कहते हैं। नोट कर सकते हैं। When the moon comes between the sun and the earth, when the moon comes between the sun and the earth, then the shadow of moon fall on the earth. This is called solar eclipse. Now you understand it by this figure. आप इसे निम्न फिगर से समझ सकते हैं। At first, make the structure of sun. सूर्य का फिगर बनाते हैं। Then make the figure of moon. It is moon. And then make the figure of the earth. You understand it? The moon comes between the sun and the earth. The moon comes between the sun and the earth. The shadow of moon माने चंद्रमा की छाया falls on the earth, पृथ्वी पर पड़ती है। This is called solar eclipse. यह घटना solar eclipse, सूर्य ग्रहण कहलाती है।
सन का साइज थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। This is the figure of what? This is the figure of solar eclipse. Solar eclipse means सूर्य ग्रहण. Again understanding. This is the figure of sun, this is the figure of moon, and this is the figure of earth, and this is the figure of moon. You understand it? When the light of sun is obstructed by the moon, and the shadow of moon falls on the earth, this is called solar eclipse. अर्थात जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाती है तथा मून सन के लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट अवरोधित करती है, जिससे मून का शैडो अर्थ पर बनता है, इस घटना को सोलर एक्लिप्स कहते हैं. सोलर एक्लिप्स विजिबल ऑन ए न्यू मून डे, एक नए चांद के दिन को सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है. अंडरस्टैंड? तो आप इसे नोट कर सकते हैं. इस फिगर को अंडरस्टैंड किए? चलिए कर लिए. ठीक है. और यहां से अंडरस्टैंड हो गया? क्लियर कर रहे हैं इसको बोर्ड को. Now there are three types of solar eclipse: partial solar eclipse, partial solar eclipse, second annular solar eclipse, and third total और full solar eclipse. सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं. There are three types of solar eclipse. Three types of solar eclipse. फर्स्ट को कहते हैं partial solar eclipse. Partial solar eclipse. सेकेंड को एनुलर सोलर एक्लिप्स. एंड थर्ड को टोटल और फुल सोलर एक्लिप्स. टोटल सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स के तीन प्रकार होते हैं. फर्स्ट पार्शियल सोलर एक्लिप्स मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण. सेकंड एनुअल सोलर एक्लिप्स मतलब होता है वलयाकार अथवा गोलाकार सूर्य ग्रहण. एंड थर्ड टोटल सोलर एक्लिप्स. और तीसरा एक्लिप्स है वह टोटल सोलर एक्लिप्स अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण. नाउ एट फर्स्ट यू नो अबाउट फर्स्ट पार्शियल सोलर एक्लिप्स. पार्शियल सोलर
eclipse means आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। अंडरस्टैंड करेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में। When the moon does not line up completely the sun and partial obstructed the light of sun, then becomes partial solar eclipse. You understand it by this figure. आप इसे निम्न फिगर से समझ सकते हैं। When the moon does not line up completely the sun, अर्थात जब चंद्रमा सूर्य के सीध रेखा में पूर्ण रूप से नहीं होती है, then the partial shadow of the moon falls on the earth, आंशिक चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ती है तथा मून सन के पार्शियल लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है जो पृथ्वी पर आती है लाइट। उसके कारण जो एक्लिप्स बनती है उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। पार्शियल सोलर eclipse। अंडरस्टैंड कर लिए ना? क्लियर कर रहे हैं इसको? सेकेंड, एनुलर सोलर एक्लिप्स। सेकेंड क्या है? एनुलर सोलर एक्लिप्स मतलब वलयाकार सूर्य ग्रहण। क्या होता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर सोलर एक्लिप्स। वलयाकार मतलब अंगूठी के जैसा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण इसे अंडरस्टैंड करेंगे। When the moon completely line up the sun and the moon is far away from the earth or the earth is closer to the sun becomes apparently smaller than the size of the sun. Then the ring-shaped portion of the sun visible from the earth, this is called annular solar eclipse.
इसे आप निम्न फिगर से समझ सकते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब मून कंप्लीटली लाइन ऑफ द सन, जब चंद्रमा सूर्य के सीधी रेखा में होती है तथा चंद्रमा पृथ्वी से दूर होती है, अथवा अर्थ नियर क्लोजर टू द सन, अथवा पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, then the ring shape of the sun is visible from the earth। तब चंद्रमा apparently means स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा का साइज सूर्य के साइज से छोटा होता है तथा वह पृथ्वी से रिंग शेप के आकार के दिखाई देता है, जिसके कारण उस ग्रहण को एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आप इसे निम्न फिगर समझ सकते हैं। आप इसे निम्न फिगर से समझ सकते हैं। यह हुआ एनुलर सोलर एक्लिप्स। इसको ध्यान देंगे, ये चंद्रमा का साइज अपेरेंटली स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से सन के साइज से स्मॉलर छोटा दिखाई देता है, और इसके कारण इसे फेनोमेनन इस घटना को एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अर्थात ऐसी घटना होती है जब सूर्य के लाइन में चंद्रमा होती है तथा पृथ्वी से चंद्रमा दूर होती है अथवा पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब चंद्रमा सूर्य के आकार में छोटा दिखाई देता है पृथ्वी से, और इसके कारण एक रिंग अंगूठी की तरह, ये अंगूठी की तरह जो पोर्शन वाला भाग दिखाई देता है एक्लिप्स, इसी के कारण इस एक्लिप्स को एनुलर सोलर एक्लिप्स अर्थात वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। एंड थर्ड टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण ध्यान देंगे। When the moon obscures total light of the sun, जब चंद्रमा सूर्य के संपूर्ण प्रकाश को ऑब्स्क्योर्स मतलब धुंधला कर देती है या काला कर देती है, जिसके कारण
जिसके कारण सूर्य पृथ्वी से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके कारण इसे टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे अंडरस्टैंड दिस फिगर से कर सकते हैं। थोड़ा जिगजैग हो गया, राउंडेड फिगर में से बनाएंगे। ये टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ। क्या हुआ? टोटल सोलर एक्लिप्स। इसे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हुआ। व्हेन द मून टोटल obstructed the light of the sun does not completely visible from the earth. This is called टोटल सोलर एक्लिप्स। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से संपूर्ण सूर्य के प्रकाश को धुंधला या काला कर देती है, जिसके कारण सूर्य का पूर्ण भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इस घटना को टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, पूर्ण या सन का संपूर्ण टोटल पार्ट क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है बाय द मून। पृथ्वी से सूर्य का संपूर्ण पोर्शन चंद्रमा के द्वारा उसके लाइट को ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब धुंधला कर दिया गया है या अवरोधित कर दिया जाता है, और इसके कारण सूर्य का संपूर्ण भाग ऑब्स्ट्रक्टेड काला दिखाई देता है पृथ्वी से। इस एक्लिप्स को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ टाइम इज लास्ट। Next day, meet with us. Thank you.